ओडिया साहित्य एवं भाषार आदि स्रष्टा आदि कवि सारला दास को प्रथम प्रणाम जनाऊँगी। इम्फा दातव्य अनुष्ठान तत्वावधायिका साहित्य प्राण संस्कृति प्राण श्रीमती पारमिता महाशय सारला पुरस्कार परिषदर उपदेष्टा सुसाहित्यिका बाग्मी डॉक्टर मालविका राय, सुसाहित्यिक संपादक श्री राजकिशोर मिश्र, पुरस्कार चयन मंडली एवं उपदेष्टा मंडलीर सदस्य एवं सदस्य मानक गभीर कृतज्ञता जनाऊँ। यही अनुष्ठान एक अनबद्ध सृष्टि। डॉक्टर भविष्यधर पंडा विशिष्ट वैज्ञानिक एवं शिल्पपति एवं तांकर पत्नी कला विदुषी श्रीमती इला पंडा मिलित प्रयास रे प्रतिष्ठित ये अनुष्ठान गत 40 वर्ष धरी उड़ीसार कला साहित्य संस्कृति क्रीड़ा क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका ग्रहण कर आसी दिग्दर्शन दे आसी से माने चिरस्मरण रहिबे ओडियावासी मनरे एथिर मोर टिके संदेह नहीं। चालीस वर्ष धरी बहु साहित्यिक कलाकार कंठशिल्पी क्रीड़ाविद उपकृत होती उत्साहित होती अनुष्ठान द्वारा। यह एक अनबद्ध अनुष्ठान। मु ए वर्ष ये पुरस्कार पाइबा विवेचित होती मोर परम सौभाग्य। मो बही सेते बेल को नथी मु संगठित होगा जाऊँगी। मो मन में गोटे विश्वास आसी जे मो नथी भी नुहे मु अच्छी। ये सम्मानजनक पुरस्कार मो मनरे से विश्वास देछि। दुईटी कारण विशेषतः निजको खूब भाग्यवान मन करुच्ची। प्रथमतः मु कविता पुरस्कृत होइछि। जो कविता मो जीवन मोर 36 वर्षर अध्यापना काल रे केवल कविता ही पढ़ाई। इंग्रेजी कविता क्लास रे घर आसला पर लिखी ओडिया कविता। एबे 80 वर्ष जाए मु लिखुची एवं मोर विश्वास होउची जे मु शेष निश्वास थिया पर्यंत कविता लिखिबी। कहीं ना सेमितिका काव्यानुभव सेमितिका आवेग निजे अनुभव करुची। एथिपाई
ବାଗ୍ଦେବୀ ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। କବିତା ସୃଷ୍ଟିର ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି କବିତାରେ ସବୁ କଥାର ଆରମ୍ଭ, କବିତାର ସବୁ କଥାର ଶେଷ। ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କବିତାରେ। ବାଲ୍ମୀକି, ବ୍ୟାସ, କାଳିଦାସ କି ହୋମର, ଦାନ୍ତେ, ଭିର୍ଜିଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କବିତାରେ। ଏବଂ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ କଥା ସେ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀ, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଥମେ କବିତାର ଭାଷାରେ ହିଁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥିଲେ, ଲେଟ୍ ଦେୟାର ବି ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମିଡିଏଟଲି ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଲାଇଟ୍। ଆଲୋକ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସବୁର ଆରମ୍ଭ କବିତାରେ, ଶେଷ ବି ହେବ କବିତାରେ। ଏବଂ ଏଇ କବିତା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା 1964 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବାଗ୍ଦେବୀ ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠର ଅନତି ଦୂରରେ ଏକ କଲେଜ, SVM କଲେଜରେ ଇଂରେଜୀ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଲି। ଏବଂ ତାର 3 ଦିନ ପରେ, 64 ମସିହାର କଥା, 3 ଦିନ ପରେ ମୋ ଜଣେ ଛାତ୍ର, ତା ନାଁ ମୁଁ ଏଯାବତ୍ ମନେ ରଖିଛି, ରମେଶ ବୋଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଖଞ୍ଜ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲରେ ବସେଇକି ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶାରଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମୋର 42 ବର୍ଷର ରହଣି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବହୁବାର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ଶାରଳା ଦାସ ଯେଉଁ ଚାଳ ଘରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ସେଠି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ ଗୋଟେ କାବ୍ୟିକ କିମ୍ବା ସାରସ୍ୱତ ଶିହରଣ ନେଇ ମୁଁ ସେଠୁ ଫେରିଛି। ଶାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ ଶାରଳାଙ୍କର ଦାସ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ, ଜଣେ ନଗଣ୍ୟ କବି। ଶାରଳା ଦାସ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ସେ ଦେବୀ ଯୋଉ ମୋର କଣ୍ଠେ ବିରାଜିଲେ, ତେଣୁ କରି ପଦ ମୋର ହୃଦୟରୁ ସ୍ଫୁରିଲେ। ମୁଁ ବି ଅନୁଭବ କରେ ଉଭୟ ଶାରଳା ଠାକୁରାଣୀ ଏବଂ ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର କୃପା ମୁଁ କିଞ୍ଚିତ ଲାଭ କରିଛି। ତାହା ନ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ପୁରୁଣା ଆବେଗ, ସେଇ କାବ୍ୟାନୁଭବ ନେଇ ମୁଁ କବିତା ଲେଖୁନଥାନ୍ତି। ଏଇ ବହିର, ସେତେବେଳକୁ ନଥିବି, ବହିର ମୁଖବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସରେ ବି ଗୋଟେ ଅଧା ଲେଖା କବିତା ନାକପୁଡ଼ାରେ ଅଟକି ରହିଯାଇଥିବ। ଅନେକ କଥା ହେଲା, ମୋର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭୋର ହେଇ ଆସିଛି। ବାଲ୍ୟକାଳ ଏବଂ କୈଶୋର ବିତିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିରୋଳ ଗ୍ରାମରେ। କିଆବାଡ଼, ଆମ୍ବ ଗଛ, ବାଉଁଶ ବୁଦା, ଗୋହିରୀ ଘେରା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ। ସେ ଗାଁର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମା ମୋତେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ଗାଁ ମଝିରେ କଇଁ ଫୁଲ ପୋଖରୀ। ଗାଁ ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ସବୁବେଳେ ସଜୀବ ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। କଇଁ ଫୁଲ ପୋଖରୀ, ସେଇ ସବୁଜ ଧାନ କ୍ଷେତ,
पाचिला धानर रंग छणी फूल डीह उपर फुटी छणी फूल हलदी फूलर बास्ना गोहिरी दाढ़े किया फूलर बास्ना वासुदेवपुर हाई स्कूल को जीवा बाटर गोटे मुचुकुंद फूल गछ जो प्रतिदिन निश्चित भाव में जावा आसा किसी समय अटकी जाए और सांगे पकेट्रे गोटे फूल धरिकी फेरे से कथा भी मोर मन अच्छी स्मृति रही बाटर गला बेले ठाकुराणी पोखरीर लाल कई एवं भी मो हृदय सजीव हो रही फुटुची प्रतिदिन फुटुची यही सब दृश्य मत मुग्ध करथिला विभोर करथिला एवं बयस बढ़िया संगे संगे मु अनुभव करी जे मो भीतर गोटे कवि प्राणटी निश्चय रही एवं परवर्ती काल से समय भितर मोर बापा बहु से मो बापा बोलुथिले छांद रत्नाकर मनबोध चौतीसा संज हेले मो बो बोलुथला कपट पाशा से बंगला रामायण खूब भल भाव पढ़ी पड़ुला उड़िया रामायण भी पढ़ुला रामायण महाभारत अनेक कथा तार मुखस्थला बढ़ई था संध्यारे विशेषकर कपट पाशा गीत को अति स्वर धरिकी से बोलुला एवं मु तन्मय हो शुणुली से गीत मु एवं अन्य पिला माने मु बारंबार अनुरोध करुली बो तू ये गीत बारंबार आमको शुणा सी कहूला अरे मु गीत शुणेबी किंतु तू बड़ हेले गीत लिखू तो गीत लिखिली अवश्य ये गीत को देखिले से वर्तमान भावी था अरे ये मो पुओ बोधे पागल हो गला जहाँ हो मु गीत लिखी एवं लिखुची प्रतिदिन अहरह मु लिखे कविता एमती कौन से दिन ना मु कविता लिखी नहीं तो ये जो दिन संध्यारे मर्यादा संपन्न सम्मानजनक सारला पुरस्कार पाउछि बोली शुणिली से दिन भोर भोर गोटे कविता लिखी सबुठ बेसी पंक्ति मुझे लिखी 30-40 धाड़ी सब परवर्ती काल से सब कविता एमती लेखाई जाए कटा जाए कटा हुए 100 थर 50 थर से दिन भी लिखी कविता संपर्क तो सब कथा कह कवितार जीवन संपर्क सब कथा कह सारी मु अनुभव करें कविता हूँ गोटे कलात्मक सृष्टि कविता हूँ आह्लादिनी आह्लाद प्रदान करवा तार प्रथम कार्य एवं कविटे से आह्लाद को पाठक मान पाखे पहुँचाइबा ट्रांसमिट करवा गोटे ट्रांसमिटर भूमिका हूँ कविर आज सकाଳେ भी जड़े बालेश्वर मत पचारे आपण कविता मेसेज कौन मुझे कथाटा को शुणिला कि हठात मोर प्रतिक्रिया हुए रागी जाए मुझे कहले आप तो बर्तमान बालेश्वर उपनिर्वाचन तो बहुत मेसेज आप शुणुवे चुंगा धरिकी समस्ते घोषणा करुवे मेसेज कविता मेसेज दिए नहीं मेसेज कौन दब तथा मुझे कहली जदि मेसेज दिए मेसेज किसी दिए सेटा हूँ आनंद प्रदान मु सब अनुभव करें कविता हूँ गोटे कलात्मक सृष्टि पाठक को आनंद दबा हूँ तार प्रथम कार्य से सी आउ किसी कहली नहीं कविता केते बड़े आसीबो केमिति कविता लेखा हो से कथा कविर हाथ न थाए से हठात आसे कविता टे कलम रे लेखा हबार अनेक आगुरी कविता लेखा सरी थाए से हठात आसे ये जो सडननेस जो कविता जो हठात अनुभव जहाँ को इंग्रेजी रे कहा जाए एपिफेनी कवितार हूँ एक विशेष गुण संक्रांत मोर सबुठ प्रिय इंग्रेजी कवि किट सिंह कथा मोर सब मोर स्मरण थाए मोर बहुत प्रिय कवि 36 वर्ष भितर कविता जे केते थर मु पढ़े
जदि कला और सौंदर्यर कथा कहुए आस्थेटिक्स कथा कहुए ताले तांको ना प्रथम आसीबो से कहिथिले जदि कविता गछ को पत्र आसला भली न आसे ताले से कविता न आसिया भलो If poetry comes not as naturally as the leaves to a tree, it had better not come at all. आसिया दरकार नथिला यही कथा मत सब बड़े मोर स्मरण रे थाए खाली मोर स्मरण रे नुहे मोर अनुभव रे मु सब बड़ी कथा अनुभव मध्य करे तो कविता आसे आपे आपे आसे अवश्य गोटे कथा मु अनुभव करे जो कविता आसे सी गोटे हठात मु अनुभव करे जमी परिवेशटा बदली जाइए अनुभव करे जमी गोटे धूप झुणार बास्ना जमी महके उठुची फूलर चारिआडे जमी फूलर बास्ना महके उठी जमी अनुभव करे मो देह मन गोटे शिहरण आसे एवं जे जमी मो कान रे किए गोटे कहीदे अरे जदि कविता रचना करने चाहूच जदि शब्द जो शब्द पे हाथ पाती बसीच ताकू जदि पाइबापी चाहूच ताहले से मुहूर्त आसीगला यही हूँ से वांग्मय मुहूर्त से प्रतीक्षित मुहूर्त तार सदुपयोग कर मुझे बुझीपे हाथ बढ़े कलम कि सब गुड़े मोर अनुभव हाथ बढ़े कलम पेनसिल जहाँ मिलला आनी मु गारे पकई जाए कौन लिखुची मुझे जाने ना परवर्ती काल तार संशोधन हुए किंतु से मुहूर्तटा को हाथ छड़ा करे ना एवं से मुहूर्त में मुझे अनुभव करे जे कविताटी से लिखुला बेले मुझे अनुभव करे जड़े सामान्य साधारण मनीष नुहे मोर मन पड़े से जो अनेक अनेक जानी से गोटे कविता शिवरंकर गोटे कविता दि पुअर ब्लाइंड बॉय गोटे गरीब अंध बालक सुंदर गीत गाए किंतु से अंध तार सांग मैंने परिहास करती अरे कौन गीत बोलुचु तो चारि पाखे एत सौंदर्य एत आकाश सूर्योदय फूल झरणा पहाड़ पर्वत इतनी दृश्य रही तू किसी देखिपारुन तू अंध कौन गीत बोलुचु से पीरियड को कहे दस व्हाइल्स्ट आई सिंग आई एम ए किंग मुझे बड़े गीत बोलुची मु जड़े राजा मु जो समय कविता लिखुए और से प्रकृति में मन हुए मुझे सिंहासन में बसी एवं मु जड़े सम्राट कविता जड़े कवि केबे हेले जड़े समाज संस्कारक नुहे किंबा कौन सी समस्यार समाधान करने से उद्दिष्ट नुहे तेबे सामाजिक वास्तवतार ऊर्ध्व को कवि जापर जीवा संभव नुहे से सबू चारि पाखे घटुवा समाचार घटना से कोविड संक्रमण हो कि ना नारी निर्यातना हो प्रत्येक घटना प्रति से सचेतन अधिक गभीर भाव सचेतन कहीं से कवि जड़े हूँ गोटे स्पर्शकातर प्राण सेंसिटिव सोल से कथा को गभीर अनुभव करे किंतु ये कथा संपर्क से सूचना दिए केवल गोटे मेटाफर जरिया गोटे इमेज जरिया से केवल सूचना दिए समाधान दायित्व तार नुहे से अन्य मैंने अच्छा कविटे केवल जहाँ कहली स्रष्टा कलार स्रष्टा गोटे पेंटिंग को देखिले गोटे पीस ऑफ पेंटिंग को देखिले गोटे चित्र को देखिले कि पत्थर खोदे गोटे मार्बल कि मार्बल मूर्ति को देखिले जो आनंद आम पाऊँ कविता से आनंद आमको दे था कवि
କହିଲେ ତ କହିବାର ତ ଏ ଯେଉଁ ଚାକିରି କାଳ ଛିଡ଼ା ହେଇକି 45 ମିନିଟ୍ ଭାଷଣ ନଦେଲେ ସେ କ୍ଲାସ୍ ସରେ ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶ ଭିନ୍ନ, ଅନେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେ ଭଳି ବାତାବରଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସମୟ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମୂକ କରିଦେଇଛି, ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ 2-3-4ଟି କବିତା ବି ଲେଖିଛି ଏ କୋଭିଡ଼ ଉପରେ, କେମିତି ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧି ଆମେ ଘର ଭିତରେ ରହିଛୁ, ତାଲା ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରେ ରହିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ କହିଛି କବିତା ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ କେବଳ କବିତାଟି ହିଁ ଦେଇପାରେ। ଏ ହୃଦବୋଧ ସବୁ ମୋର ଅଛି, ସବୁବେଳେ ମୋର ହେଇଛି।